what should be your last 3 weeks strategy for FMG जनवरी 2026। अभी आपको और ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करनी है। जब पहली बार या दूसरी बार रिवीजन जब आपने किया था तो हो सकता है some stuff you might have missed it or some stuff you might have overlooked it। इस समय पे आई वुड से कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं विच माइट क्रिएट अननेसेसरी फोमो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। जीटी देना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस जीटी को रिवाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हाय गाइज, आई एम डॉक्टर सिराज अहमद, योर फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी, एंड वी आर हियर to discuss quickly what should be your last 3 weeks strategy for FMG January 2026. So remember, at the end of this session, I am also having a surprise for all of you guys, how you can actually summarize your entire revision in the last 1 week of preparation as well. So first and foremost, let me tell you how are you going to handle the first 2 weeks and the last 1 week. So it will be divided into 2 parts. And for the first 2 weeks, whenever you are studying, there are high chances you might be thinking, I am forgetting this, I am forgetting that. Is there something wrong? Other people are able to remember that thing. My other friend is able to remember everything about anatomy. That is possibly because maybe your friend read that day, or maybe today or yesterday he read about anatomy. Once the question will come, rest assured you will be also able to recall and remember. Just continue with your planned revision. I'm not going to give you any new revision plan in this last week. However, for the students those who are actually seeking help, I am having a plan as well, which I will just show you quickly. You can take a screenshot. If you are forgetting everything, remember that's absolutely a normal phenomena. It's absolutely, I would say, it's absolutely normal to forget or getting the feeling of forgetting, राइट मैं हमेशा बोलता हूँ, भूलता वही है जो पढ़ता है। जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ याद है, वो नहीं भूलता है, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी कुछ नहीं भूलता है। तो इफ यू आर फॉरगेटिंग, दैट्स अ गुड साइन दैट यस यू हैव रेड समथिंग, रिमेंबर दैट। इस समय पे मैं अगर बोलूंगा तो ये इमेज क्या लिखा हुआ, दैट इज एक्चुअली ब्लर्ड। दिस वाज एक्चुअली एनिमेटेड इमेज, बट पीडीएफ में वो इमेज नहीं आ रहा है। दिस इज एक्चुअली ट्राइंग टू शो कि अभी आपको और ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करनी है। जब पहली बार या दूसरी बार रिवीजन जब आपने किया था तो हो सकता है some stuff you might have missed it or some stuff you might have overlooked it। तो इस समय पे उन माइनर चीज़ों को देखना है, स्पेशली उन टॉपिक्स को देखना है विच हैव बीन एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो अब आपको ज़्यादा फोकस होना है किस पे, ये जितने भी PYTs हैं, PYTs प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, चाहे आप FMG सॉल्यूशन से करें या विच एवर सोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू चूज। PYTs का मतलब ये प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उससे PYTs निकल के आ जाते हैं। तो ट्राई टू स्टे मोर फोकस्ड इन दिस वन। और PYTs के बेसिस पे आपको लास्ट 1 वीक में कैसे रिवीजन करना है वो भी मैं आपको जस्ट 2 से 3 मिनट बाद बताने वाला हूं इसी वीडियो में। सो रिमेंबर दैट questions are never repeated but topic does। इसीलिए any faculty will be giving you the same advice that please focus on the previous year topic। you have to stay focused on topic, basic must be strong। अब देखिए, जब strong करने का समय था वो आपने किया, अगर नहीं हो पाया do not worry। for example, let's say you are saying सर मैंने अब तक बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, right? Now biochemistry में there are few things that are always going to be a part of the examination। for example, the carbohydrates, there are some important rate limiting enzyme, although rate limiting enzyme is not being asked, there is more of a clinical integration of those rate limiting enzymes and some other stuff like let's say fatty acid metabolism और lipid metabolism। इनसे जो questions आते हैं तो इनके जो pattern है that is quite fixed। अगर पहले पूछा है acid, acidic amino acid, तो maybe this time they can ask me let's say hydroxyl containing amino acid or basic amino acid, this type of topics। so amino acid की classification you should know basic। what I'm trying to say is जो previous topics आए हुए हैं at least minimum उतना कर लीजिए। let's say some of you are saying सर मैंने एनाटॉमी नहीं की है। नाउ एनाटॉमी में अपार्ट फ्रॉम द बोन्स, स्ट्रक्चर्स, द नर्व्स, द ब्लड सप्लाई, राइट, कुछ नया इजाद नहीं हो रहा है। लाइक फ्रॉम फार्माकोलॉजी आई वुड से दैट न्यू ड्रग्स माइट हैव बीन might have got approved in the previous few years or maybe a couple of months ago a couple of drugs came, but in anatomy कुछ नई चीज़ें नहीं आई हैं। तो what I would recommend for all of you guys कि जो पहले के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट मिनिमम 200-300 जो भी MCQs दिए गए FMG में, FMG सॉल्यूशन में या विच एवर सोर्सेज दैट यू आर यूजिंग, try to do those topics on priority basics, right? and each subject is equally important। देखिए ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि some students they try to leave bigger subject like medicine, surgery, gynae or whichever subject they feel is bigger, sometimes they leave even pharmacology as well। so subject के
स्ट्रेंथ क्या सब्जेक्ट में जो एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आते हैं वो टोटली डिपेंड करता है सब्जेक्ट का लेंथ कितना है, सब्जेक्ट का साइज क्या है। वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली आते हैं, लेसर सब्जेक्ट से, छोटे सब्जेक्ट से लेसर मार्क्स आते हैं। तो ऑलवेज टू रिमेंबर ईच सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलेंगे सर फॉरेंसिक छोटा है, साइकेट्री छोटा है, तो मे भी फॉरेंसिक से 6 to 8 मार्क्स पूछे जाते हैं, साइकेट्री से 5 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो डू रिमेंबर दैट यू हैव टू फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट। और रिवीजन के टाइम पे स्पेशली जो बिल्कुल टच नहीं किए हो तो अब दोबारा नोट्स टच नहीं करना है। जैसे मैंने बताया एटलीस्ट टॉपिक्स कर लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड इफ यू आर रिवाइजिंग इन अ सर्टेन वे, विच एवर वे दैट यू आर फॉलोइंग, विच एवर शेड्यूल दैट यू आर फॉलोइंग, लेट्स से 12 hours a day or 10 hours a day, just keep following that, remember that. Now how are you going to divide the time? See right now आपके दिमाग में आ रहा है यार मैंने ये तो किया था, वो मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, राइट। और जैसे ये भाई साहब डांस कर रहे हैं, आप भी जो है कि डांस कर रहे होगे, कई बार आपका ब्रेन डांस कर रहा होगा, एंड समटाइम यू माइट गो इन एंग्जाइटी एज वेल, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। रिमेंबर, है ना, एक मूवी में बहुत अच्छी डायलॉग भी है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है ना। तो वैसे ही आपके एग्जामिनेशन का है, वी आर नेवर रेडी। आपको कभी याद है कि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए 100% रेडी थे? आई मीन मुझे तो कभी नहीं याद है। कभी भी इफ एनी एग्जामिनेशन इज देयर, आई ऑलवेज थिंक काश मुझे 4 दिन और मिल जाता ना तो मैं बैंड बजा देता। और जब 4 दिन पहले का समय था तो मैं आराम से कुछ और कर रहा होता था। फिर एग्जाम के 2 दिन पहले लगता है कि यार 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता ना तो मैं एग्जामिनेशन की बैंड बजा देता, मैं ये पढ़ लेता, मैं वो पढ़ लेता। तो समझ लीजिए कि अगर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आपको जो ये फीलिंग आने वाली है, आज मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको फीलिंग आने वाली है। मैं गया था फ्यूचर में, फ्यूचर से फिर पास्ट में आके टाइम, ऐसे समझ लीजिए कि एक टाइम मशीन के थ्रू सर गए थे, जा करके आगे और पीछे आके फिर बता रहे हैं कि हाँ भाई तुम ऐसा सोचोगे। तो 3 वीक पहले ही बता रहा हूँ कि डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि काश मैं पहले ये जान गया होता, तो या पहले अगर ये कर लिया होता तो अब ये ऐसा नहीं होता। सो लेट्स से कि 3 हफ्ते बाद जो आप सोचोगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको लग रहा है जो करना है अभी करना शुरू कर दो। ये भी करना है, वो भी करना है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जो हो पाया वेल एंड गुड, नहीं हो पाया पैनिक नहीं होना है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है पहले एटलीस्ट रिवीजन शुरू करिए, और पैरेलल में 2-3 घंटे दे करके ऑन द रेगुलर बेसिस जो सब्जेक्ट बिल्कुल छूट गए हैं, ये उनके लिए स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट दोज हैव लेफ्ट फ्यू सब्जेक्ट, एटलीस्ट उनके प्रीवियस ईयर टॉपिक करके जाइए। प्लीज प्लीज डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में मत जाइएगा, because when you are going to get focused on certain things, I want you to get focused on that. For example, let's say you're planning कि मुझे मेडिसिन 2 दिन में करना है, तो आप अपना पूरा हार्ट एंड सोल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेडिसिन को दीजिए। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑन टू मल्टीपल थिंग्स। एंड इस समय पे आई वुड से कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं विच माइट क्रिएट अननेसेसरी फोमो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और जो बच्चे मतलब एक सर्टेन एरिया में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई हैदराबाद की लोकेशन में रह रहा है जहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर में स्टूडेंट रहते हैं, दिल्ली के जैसे गौतम नगर वाले एरिया में रह रहे हो, या आप राजस्थान के किसी, जयपुर के किसी एरिया में रह रहे हो जहाँ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पे एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओन व्यूज़, है ना। सब अपने अपने टेस्ट के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार आपको अपनी अपनी ज्ञान दे रहे होते हैं, है ना। आप हमेशा याद रखिएगा, मैं क्लास में जो कहानी सुनाता हूँ कि 10 लोग जिनका विजन कम था वो हाथी देखने गए, जिसने हाथी का जिस पार्ट पे हाथ रखा उसने हाथी को वैसे डिस्क्राइब किया, है ना। तो वही वाली हाल है, जिसकी जैसे एक्सपीरियंस है वो आपको गाइड करेगा, वो उसी तरीके से आपको बताएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बिटर एक्सपीरियंस लेकर के और आगे बढ़ें। whatever that you are going to take, try to take it from your mentors, your faculties, or someone whom you admire, someone who has actually done wonders in their examination, right? Not from someone who has had a bitter experience from the examination, because इस समय पे मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह का एक नेगेटिव एस्पेक्ट एक दिन के लिए भी आपका लॉस हो, राइट। सो डू रिमेंबर दैट बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, बट यू हैव टू बी फोकस्ड। Just try to pick a subject and just do that. You have to be organized, you have to be more goal oriented and time management, है ना। मैंने यहाँ पे पहले तो एलिमिनेट लिखा था, लेकिन बाद में मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। पहले रिड्यूस लिखा था, बाद में इसको एलिमिनेट भी कर दिया। अगर हो सके तो भाई साहब ये जो फ़ोन वाली डिस्ट्रैक्शन है ना, इनको कम कर लीजिए। स्पेशली जितने लोग सोच रहे हैं ना कि इंस्टाग्राम पे पढ़ाई होती है, तो समझिए इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। वो समय था जब था। अभी के लिए आपके नोट्स, आपका जो बुक आप पढ़ रहे थे, राइट, या आपके जो जीटीज के जो सोर्सेस हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट। नोट्स बुक, फोन का मतलब ये है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, तो मैं पूछता हूँ कहाँ से किया,
तो जैसे कि सर मैंने टेलीग्राम के ग्रुप से किया, राइट, अगेन आई डोंट नो व्हाट इज द सोर्स, वेदर इट कुड बी रिलायबल एज वेल बट इट कुड बी हाईली अनरिलायबल एज वेल. तो जस्ट फोकस on something which is more reliable and stay goal oriented. Try to reduce all the social media distractions. ठीक है, जो पढ़ाई करनी थी हो गया है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से, अब उसको छोड़ दीजिए. अभी अपने नोट से पढ़ाई करिए, अपने जो रिवीजन नोट्स हैं उनसे पढ़ाई करिए, राइट. यू विल हैव टू प्लान एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस वन फ्यूचरिस्टिक थॉट, राइट. स्पेशली ये उनके लिए है जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने कभी पहले एग्जाम दिया, बिकॉज दिस फ्यूचरिस्टिक थॉट विल नेवर कम to the student those who are going to give the first time. This will usually come to the student जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा एक बार, दो बार या n number of time. What if पेपर ऐसा आ जाए, what if पुरानी वाली चीज रिपीट हो, राइट. सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू टेक यू ऑलवेज बैक सीट, हमेशा आपको बैक सीट खींचेगा, पीछे की तरफ खींचता रहेगा. तो जो आपकी पुराने लोड्स हैं, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इज मे हैव गिवन यू स्कार, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इज पुटिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू. Try to offload that. You try to take frequent breaks, avoid the futuristic thought, है ना. अगर आप इसको रखना ही है तो you think about this कि ओके मैं इस एग्जामिनेशन को पास कर रहा हूँ एंड दीज आर द पीपल इन माई लाइफ हु हैज़ एक्चुअली प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, चाहे जिस भी तरीके से. समटाइम कोई आदमी आपको या कोई आपका फ्रेंड या कोई क्लासमेट एक सिंपल क्वेश्चन ही पूछा और वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आ जाता है ना. कई बार आपसे ये कोई पूछता है भाई पी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, और आप देखते हो यार ये तो पी वैल्यू एग्जाम में आ गया. किसी ने पूछा यार ये ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और किसी एक दूसरे फ्रेंड ने बताया और आपने सुन लिया, राइट, या किसी टीचर ने यूट्यूब पे पढ़ा दिया था पहले और आपको समझ में आ गया था. सो ट्राई टू थिंक कि मैं हु ऑल आर द पीपल हु हैज़ एक्चुअली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन माई प्रिपरेशन, इन माई जर्नी, उसके बारे में सोचिए. अगर आपको फ्यूचरिस्टिक थॉट आते हैं तो यू कैन टेक अ ब्रेक इन दैट, थिंक अबाउट इट एंड थिंक पॉजिटिव ऑलवेज एंड ऑलवेज. योर गोल शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आई हैव टू रिवाइज, I have to do GT and I have to revise GT, right? You have to attempt GT. Please do remember that. Attempt GT, or rather I always say in my class that leave the exam day life before actual exam. इसका मतलब क्या हुआ बिफोर एक्चुअल एग्जाम? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यूजुअली क्या होता है कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन देयर इज अनड्यू स्ट्रेस. वी ऑल नो दैट कि आपको सुबह उठना है, देन रेडी होना है, एंड देन देयर इज टू मच सिंपैथेटिक ड्राइव. जब भी कोई प्रॉब्लम में आता है ना, तो फार्माकोलॉजी में पढ़ाता हूँ कि सिंपैथेटिक ड्राइव हाई रहता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड रहता है, राइट. व्हेन द सिंपैथेटिक ड्राइव इज हाई, योर हार्ट इज है ना हैविंग पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, एंड योर थॉट्स आर एक्चुअली और ब्लर्ड, है ना. सिंपैथेटिक ड्राइव के सारे फीचर्स हैं, ट्रेमर्स आ रहे होते हैं. सो इन दैट के सिनेरियो ऑलवेज से अगर ऐसा है तो एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करिए. इसी 3 हफ्ते में आई कुड से आप 2 ले सकते हैं, 2 GT डे सेलिब्रेट कर सकते हैं. सेलिब्रेट ही बोलता हूँ मैं उसको इसलिए बिकॉज उस दिन सिर्फ और सिर्फ GT होगा और GT का ही डिस्कशन होगा. यू गेट अप इन मॉर्निंग, लेट्स से 4 और 5 AM, पुट अ अलार्म, राइट. अब आप बोलोगे सर नींद कैसे खुलेगी, वो देखिए वही तो हमारा मेंटल एक्सरसाइज है, राइट. दैट एग्जाम के दिन कैसे नींद खुल जाएगा, या जब आपकी फ्लाइट रहती है तो हाउ डू यू एक्चुअली गेट अप, है ना. आपको कोई आता नहीं जगाने, यू सडनली यू गेट अप, योर ब्रेन इज ट्रेन्ड दैट वे. लाइकवाइज यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. यस, आई हैव टू गेट अप एट सर्टेन टाइम, लेट्स से 5 AM, 4:30 AM, 5 AM, 6 AM, and get ready. Dress up in the same way that you actually plan that I will go for the examination. Wear your shoes, wear the same kind of perfume, and sit back on your revision table. When the time is, let's say 9 AM, start your GT. Give half of the GT, take a break, lunch break, start the other half of GT. If you want, after the completion of the 300 question, you can take another 1 hour of nap, and then after that try to revise the entire GT. GT देना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस GT को रिवाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप GT रिवाइज नहीं करते, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग, देन यू हैव वेस्टेड द एंटायर 5 hours into GT because you don't know whether which question is right or which question is wrong, है ना. आप हो सकता है कि in that GT you got 190 and then you are highly elated. What about the 110 question that was wrong? What if out of 110 even 10 topics are going to be asked? And that actually happens in the examination. So do remember that. Leave the exam day before actual the examination. कैसे लीव कर, कैसे इसको सेलिब्रेट करना है, कैसे इसको जी के दिखाना है, जैसे मैंने बताया, है ना. आप अपने 2 डेट डिसाइड करिए, मार्क कर लीजिए, अभी से मार्क कर लीजिए कि दीज आर द 2 GTs that I am going to attempt in these 3 weeks time. ठीक है. यू विल बी ड्रॉइंग योर शेड्यूल. द फर्स्ट
2 weeks and the last के 1 week. Last के 1 week में I would say there are two things that you can do. One is you continue to follow your schedule, and second one is the surprise that I'm going to unveil at the end of the session, that how you can actually revise the entire 19 subject with us, right? And that will be totally based on the previous year topics that has been actually asked in the past 5 to 6 or 6 to 8 examination. So that is how our faculties have created a workbook for you, and there will be workbook based revision in the last 1 week of the examination. I will show you, I'll unveil that as well at the end of this session. So you continue your revision, right? You can, let's say, one subject at a time. Right now you can do that. You have to do that. You don't have time for, let's say, 4 hour, one subject at a time. Plus you can actually do, अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया है ना, तो you can do PYQs of untouched, है ना? untouched का मतलब है ना अछूत वाले सब्जेक्ट, जिनको आपने अब तक छुआ नहीं है, टच नहीं किया, उन सब्जेक्ट के PYQ सब कर लीजिए, है ना? योर मॉर्निंग शेड्यूल शुड ऑलवेज बी डिसाइडेड अहेड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल अभी रात हो रहा है और कल सुबह मुझे क्या स्टार्ट करना है, इट शुड ऑलवेज बी डिसाइडेड. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान एंड यू जस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट यू हैव. ठीक है, दिस इज वन शेड्यूल दैट हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज योर 3 weeks का टाइम. लेट्स से subject like anatomy physio biochem, if you are actually starting now the revision, is it possible? Yes, it is quite possible. that see already आपने 1 या 2 रिवीजन कर रखा होगा, फाइनल में आपको स्प्रिंट वाले फॉर्म में भागना है ना? तो मेडिसिन, सर्जरी, OBG 2 days each, पैथो फार्मा PSM 1.5 days. At any point of time, if you feel that I do not need let's say OBG for 2 days, I need only 1 day for OBG, example only, then you can put that extra day for medicine. Or let's say I do not need my biochem revision 1 day, I need, let's say, only 10 hours. So the remaining 2 to 3 hours you can put it for some subject which is actually weak according to you, right? Prof subject you can put, let's say, 6 hours each subject, so that will be around 3 days it will be done. So this is one way. If you are actually doing your revision all by yourself, you can make a schedule something like this and you can continue the revision. Now the best days are yet to come. Remember that. So focus on the revision. That is the best thing. And for any examination we have in our country, always do remember the revision is the best tool that we have. Always do remember. Examination बिल्कुल ये टेस्ट नहीं करता है कि आपकी क्लिनिकल नॉलेज या क्लिनिकल आप कितना क्लिनिकली साउंड हो, बिकॉज उस लेवल का एग्जामिनेशन अभी नहीं है. हालांकि क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, that you will be able to do on the basis of the previous year topics that has been asked, and the how clinically integrated subjects have been taught to you during the classes, right? So as I said that I will be unveiling what we have in house for all of you guys in the last 1 week. So in the first week of January, or I would say the end of the first week of January, somewhere around 6th or 7th January, the exact date is 6 January. तो 6 और 7 जनवरी को वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग मिशन FMG December 2026, in which the complete syllabus will be discussed for all of you guys on the basis of the PYQs. It will be actually PYTs के basis पे, PYTs के basis पे there is a workbook based revision, and this will be completely free for all. This will be completely free for all at the YouTube. So like every examination, हर एग्जाम से पहले देखिएगा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वो 6 दिन का सेशन हमने जो किया था ना, वो एक्चुअली बहुत काम आया. सो ऑल आवर एक्सपीरियंस फैकल्टी, लाइक फॉर एग्जांपल अश्विनी सर विल बी कमिंग विद द PSM, Sudha ma'am will be coming with her opthal. So with her own expertise, with her own skills, the way she has taught, guided thousands of the students, or sir has guided, or our all faculties, है ना? Prasanveer sir will be coming for OBG, Sandeep sir will be coming for surgery, all our faculties, right? The name is always known to all of you guys, I'm pretty sure. So likewise, all our 19 faculties will be coming with their expertise, and they'll take care of their previous year topics. और उसके बेस पे the workbook has already been prepared for you, और उसी वर्कबुक को आपको पहले PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा. इफ यू वांट यू कैन टेक अ प्रिंट, इफ यू वांट यू कैन पुट इट इन योर iPad एंड जस्ट कंटिन्यू द रिविजन, है ना? तो 6-7 जनवरी से स्टार्ट करके और 7 डेज का प्रोग्राम रहेगा. दिस विल बी वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज टू डू योर एंटायर PYT बेस्ड रिविजन, राइट? सो एज आई सेड, द बेस्ट वे टू predict your future is to create it and work for it. So this will be my take for all of you guys in the last 3 weeks, what you are actually going to do.
Remember, mindset is everything. If you want to actually win this race, first you have to win here, and then ultimately you will win on the actual day of examination. So I will see you guys very soon on YouTube itself and in my upcoming classes. For all of you guys, keep revising, keep learning, and keep believing in yourself. The best days are yet to come. Thank you very much.